definition of uniform convergence. पिछले कुछ यूनिट्स में हमने यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के कुछ रिजल्ट्स हमने करे थे कि if we have a sequence of complex functions, the a sequence of complex valued functions in some domain D, we say that किसी का माइक कहाँ है रजत? Okay, we say that this sequence Fn converges uniformly to of another function f on D if मैंने इस तरीके से इसको डिफाइन किया था कि if there is a sequence epsilon k, epsilon n है तो epsilon n नहीं रखिएगा, positive numbers such that a sequence of positive numbers must be converging to 0, and we have this estimate fn of z minus f of z is less than epsilon n for all z in domain T and for each n greater than equal to 1. If you have such a situation, then we say that this sequence is a uniformly convergent sequence on domain D to the function f. Some of the consequences, some of the interesting results that we had because of the uniform convergence, one of them was that uniform limit of continuous functions is a continuous function. Uniform limit of continuous functions is a continuous function. And another consequence that we went through is that if you have a sequence of functions which converges to another function f uniformly on some domain D, then for any contour C, this limit of the integrals fn of z dz, this sequence converges to the integral of f over the contour C, where C must be some contour inside domain D. These were the two results that we have studied and brought in the previous unit. I think it was done in unit 2. And today we will study two other results which uses this uniform convergence, which are indeed the consequences of uniform convergence. Some information about limit functions, and one of the first information that we will study is that the uniform limit of an analytic function is a known analytic function. Let me do this theorem first. That suppose we have this sequence fn is a sequence of analytic functions on a domain D, and we suppose that this sequence of functions converges to another function f uniformly on D. Then we have to prove that this limit f is also
एन एनालिटिक फंक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जी आपके कॉम्प्लेक्स फंक्शन थ्योरी में कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के अंदर आपके पास limit of analytic function is also an analytic function and आप इसको देख सकते हैं to check के यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ही क्यों नेसेसरी है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस क्यों फेल हो जाती है। you just look at any text book, you will get an example of analytic functions which converges point wise but its limit function is not analytic. Okay, तो देखिए प्रूफ बड़ा इजी है इसका। वी हैव टू जस्ट अप्लाई इनटू two theorems, one Cauchy's theorem and another we have to apply Morera's theorem. So first let me mention, since you have a sequence of analytic functions and the sequence of analytic functions is also, this is a sequence of continuous functions as well. And since continuity is preserved by uniform convergence, so we have that since continuity is preserved under uniform convergence, so we find that f is continuous on U. पहले तो continuous से पता चल जाए, is continuous on D. अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूफ करना है कि f is analytic। तो f को एनालिटिक प्रूफ करने के लिए हम मोरेरास थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। तो मोरेरास थ्योरम का इस्तेमाल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मोरेरास थ्योरम आपको मैं फिर से एक बार यहाँ पर आपको मोरेरास थ्योरम रिकॉल करवाता हूँ कि मोरेरास थ्योरम हमने जिस फॉर्म में करी वो कहती है कि अगर आपके पास R इज क्लोज्ड रेक्टेंगल, डोमेन के अंदर कोई भी रेक्टेंगल है, क्लोज्ड रेक्टेंगल in D such that the integral over the boundary of this rectangle of a continuous function f is 0। हर एक रेक्टेंगल के ऊपर अगर आपके पास ये इंटीग्रल 0 हो जाता है, where this is a closed rectangle but this is a rectangle whose sides are parallel to the coordinate axis and this integral vanishes, then f is analytic, on D. You have this मोरेरास थ्योरम। तो हमें क्या प्रूफ करना, दैट मीन्स हमें f को एनालिटिक शो करने के लिए हमें इस डोमेन के अंदर, inside this domain D, हमें हर एक rectangle which whose sides are parallel to the coordinate axis, तो उसके ऊपर उस रेक्टेंगल की बाउंड्री के ऊपर इस इंटीग्रल को 0 शो करेंगे। दैट विल देन डायरेक्टली विल अप्लाई मोरेरास थ्योरम टू establish that this function is analytic. So first we consider an arbitrary rectangle in the arbitrary rectangle in D whose sides are parallel to the coordinate axis, तो नाउ अब देखिए आपके पास ये रेक्टेंगल है, अगर ये डोमेन के अंदर इफ इट इज अ रेक्टेंगल, ये पूरा इसका इंटीरियर भी है, क्लोज भी है, तो इसकी जो बाउंड्री है तो बाउंड्री फॉर्म द क्लोज कंटूर। तो क्लोज कंटूर के ऊपर किसी भी एनालिटिक फंक्शन के इंटीग्रल 0 होता है बाय Cauchy's theorem। So by Cauchy theorem, it's a Cauchy-Korsaar theorem, I write it only Cauchy's theorem। You know that since आपके पास हर एक फंक्शन fn जो है ये एनालिटिक है, तो इसका इंटीग्रल ओवर एनी क्लोज कंटूर, इन पर्टिकुलर ओवर द बाउंड्री ऑफ दिस रेक्टेंगल, क्योंकि इट इज अ क्लोज कंटूर, इट हैज टू बी 0 एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरी n बिकॉज हर एक fn जो है आपके पास दैट इज अ एनालिटिक फंक्शन। तो
आल्सो क्योंकि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में यू नो दैट दिस लिमिट ऑफ इंटीग्रल एफ एन जेड डी जेड, अब लिमिट आपके पास इंटीग्रल के साथ इंटरचेंज होगी तो इट विल बी एफ ऑफ जेड डी जेड। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास इंटीग्रल जो है वो सारे के सारे इंटीग्रल जीरो है, तो इसका मतलब आपके पास राइट हैंड साइड का जो इंटीग्रल है एफ का ओवर द बाउंड्री ऑफ दिस रेक्टेंगल आर, वो इंटीग्रल भी जीरो हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। It will be zero। तो हाँ, आपके पास क्या था, you started with an arbitrary rectangle R and f was आपसे पहले डिस्कस किया था कि this is a continuous function and we found that over the boundary of this rectangle the integral of this function is zero, hence by Morera's theorem it follows that this function is analytic। Morera's theorem, it follows that f is analytic। So ये एक बड़ा important milestone result आप कह सकते हैं कि आपके पास यूनिफॉर्म लिमिट ऑफ एनालिटिक फंक्शन इज आल्सो अ एनालिटिक फंक्शन, बट you just do find an example of a function which is a limit, which is a pointwise limit of a sequence of analytic function, but that's not a analytic there। तो देखिए नेक्स्ट जो रिजल्ट है, नेक्स्ट रिजल्ट से भी हम इस रिजल्ट को डिड्यूस कर पाएंगे एंड वी विल सी दैट लेटर। तो उसको थोड़ा सा डिफरेंटली मैं स्टेट करूंगा, उसमें हम ये प्रूफ करेंगे कि अगर आपके पास यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होने की वजह से आपके पास डेरिवेटिव्स की सीक्वेंस भी यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती है, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है उसमें कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस उसमें थोड़ी सी डिफरेंट है। ये इस तरीके से लेते हैं कि लेट fn be a sequence of analytic functions on a domain, not on a domain, on a disk। एक डिस्क ले लेता हूं मैं। This is a sequence of analytic functions on some closed disk centered at, ठीक है, let's take it there, एक closed disk लेते हैं such that this sequence converges to a function f uniformly on this disk, this closed disk। closed disk पे ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है। तो so now then what is the conclusion? The conclusion is then for any m greater than or equal to 1, this sequence of mth derivatives of these functions, it also converges to the mth derivative of this function uniformly। but कहाँ uniformly? On a closed disk with center z0 but radius small r ले रहा हूँ for any r less than capital R। ये थोड़ा सा ट्विस्ट है यहाँ पर, ये जो डेरिवेटिव्स की सीक्वेंस है आपके पास बड़ी, आपके पास डिस्क है रेडियस कैपिटल आर की, तो वी कैनॉट से कि ये पूरे के पूरे डिस्क पे आपके पास ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है ये सीक्वेंस ऑफ डेरिवेटिव्स। बट हाँ, इसके अंदर कोई भी स्मॉलर डिस्क अगर आप ले लेते हैं, यू टेक एनी स्मॉलर डिस्क इनसाइड दिस, then over that disk this sequence of derivatives is going to be uniformly convergent। this is the context of this। और we will, हम इस टाइप की कन्वर्स हो, ये थोड़ी सी डिफरेंट है, इट इज नॉट एग्जैक्टली द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, क्योंकि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पूरी पास ऑन नहीं हो रही है, पूरे डोमेन पे रिस्ट्रिक्ट हो रही है, कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेट्स के ऊपर वो रह रही है। जैसे आपके पास ये इस केस में आप ये देखिए पूरी डिस्क के ऊपर आपके पास यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है एफ एन की,
रेडियस आर के डिस्क के ऊपर, बट एग्जैक्टली इन केस ऑफ डेरिवेटिव्स आपके पास वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस कॉसान पूरे के पूरे डिस्क पे नहीं हो रही, बट उसके अंदर स्मॉलर डिस्क पे वो हो रही है। इस तरह के सीक्वेंस को हम नॉर्मल कन्वर्जेंस बोलते हैं। आई विल डिफाइन इट आफ्टर द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। तो सो पहले ये प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो आपके पास दो आर गिवन है, लेट अस चूज कैपिटल आर, तो रेडियस आ गया बड़ी डिस्क का जहाँ पर सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्ज है, एंड लेट्स फिक्स दिस कैपिटल आर, ठीक है। Yeah, let's write it in the proof. Fix this some r positive lying between r, ठीक है। And what we're going to do next is to first utilize this uniform convergence of the given sequence. What you have, since we have this sequence given to be uniformly convergent, it is uniformly convergent on this disk. तो अब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का डेफिनेशन क्या कहता है? यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का डेफिनेशन कहता है कि आपको एक सीक्वेंस मिलेगी पॉजिटिव नंबर्स की जो जीरो को कन्वर्ज करेगी, such that the difference of the modulus of fn and fz is bounded by is strictly less than epsilon n for each z in this disk where the uniform convergence is mentioned, and also for each n greater than or equal to n. You have this STP. ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशन, you just apply the definition of uniform convergence. Now we have to establish that mth derivative, m can be any number, वो भी कन्वर्ज करेगा यूनिफॉर्मली बट इन अ स्मॉलर डिस्क ऑफ रेडियस स्मॉल r, तो जो हमने ऑलरेडी फिक्स किया. Now what I am going to choose, you have this disk जिसके ऊपर फंक्शन एनालिटिक है, एक और स्मॉलर डिस्क है रेडियस r की, ठीक है। तो क्योंकि r स्ट्रिक्टली लेस देन है कैपिटल R से, तो it is always possible to choose another real number between small r and capital R. So I'm going to choose another number, choose s such that this capital R is less than s is less than capital R. And then we are going to apply the Cauchy integral formula. I chose another disk and I'm going to apply the Cauchy integral formula, then apply Cauchy integral formula for derivatives later. For derivatives to this function, this is fn minus f, क्योंकि fn भी एनालिटिक है तो माइनस एफ भी एनालिटिक है, क्योंकि अभी हमने प्रीवियस थ्योरम में प्रूफ किया ऊपर कि लिमिट यूनिफॉर्म लिमिट ऑफ एनालिटिक फंक्शन इज एनालिटिक, तो fn माइनस f भी एनालिटिक होगा. तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट और डिस्क कौन सी ले रहा हूँ, डिस्क रेडियस s वाली डिस्क पे अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है. डेरिवेटिव टू fn माइनस f on the disk dz naught of radius s. So what you have, what is the integral formula for derivatives of mth derivatives? We have this expression as mth derivative of function f at z minus f m at z. This is equal to 1 upon, it has to be m factorial upon 2 pi I integral over this disk of radius, no sorry यहाँ zeta रखना मुझे, zeta minus z naught equals to s. Do not get confused with this zeta and s, okay. It is f n of zeta minus f of zeta upon zeta minus z to power m plus 1, यही होता है जी.
dz. This is the Cauchy's integral formula. I hope you remember it. Cauchy's integral formula for derivatives. And what I'm going to do, I'm going to restrict this z क्योंकि ये आपके पास z can be any number between in this disk of radius s, but I'm bothered about only this z less than or equal to r. हम इस पे ही restrict करेंगे, हमें इतना ही requirement है, ठीक है? तो अब देखिए थोड़ा कुछ estimates check कर लेते हैं. Now zeta हम सर्कल ऑफ रेडियस s से ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसका जो डिस्टेंस होगा अगर हम मेजर करें z0 से, दैट इज s, ठीक है? एंड अब जीटा और z का डिस्टेंस कितना है? जीटा और z का डिस्टेंस यहाँ है, ये देख लीजिएगा. आई होप आज मेरे कलर्स वर्क कर रहे होंगे. या तो ये आपके पास z कहीं अंदर है, यहाँ पर z है, तो यू हैव जीटा समवेयर हियर, दिस इज जीटा. तो अब ये डिस्टेंस हम मेजर करेंगे एंड दैट डिस्टेंस इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन द डिस्टेंस ऑफ s माइनस r. तो इसको हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी से भी वेरीफाई कर सकते हैं. इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि थीटा माइनस z, आई कैन राइट इट एज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस ट्रायंगल इनइक्वालिटी ऑफ थीटा माइनस z0 माइनस z माइनस z0. तो अब जीटा माइनस z0 आपके पास r है, s है, तो z माइनस z0 आप यू आर चूजिंग इट टू बी लेस देन इक्वल टू r, तो माइनस करके ग्रेटर हो जाएगा, तो इट हैज टू बी s माइनस r. तो बाहर वाला मॉडुलस में इसलिए हटा रहा हूँ, इट इज r एक्चुअली, इसलिए हटा रहा हूँ क्योंकि आई नो दैट s इज बिगर नंबर देन r प्लस माइनस r इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर, तो मॉडुलस रखने का कोई बेनिफिट नहीं. यू हैव दिस एक्सप्रेशन. और अब इन एक्सप्रेशंस को, और आल्सो हमें ये भी मालूम है कि आपके पास जो fn जीटा है माइनस f ऑफ जीटा, क्योंकि ये पर this is less than epsilon n and this is true for every disk, every point in this bigger disk. तो in particular zeta जो है वो भी इस disk के अंदर है, तो I can write it to be less than, this is less than epsilon n, ठीक है? For each zeta on this circle, zeta minus z0 is equal to. अब देखिए ये तो इन सब इनइक्वालिटीज को अगर मैं इस इंटीग्रल के अंदर अप्लाई करूं, और इस इंटीग्रल का ये इक्वेशन अगर मैं इसको लेट अस कॉल इट स्टार इक्वेशन पे मैं मॉडुलस लूं और ये सारी इनइक्वालिटीज वहाँ एस्टिमेट्स वहाँ यूज करूं, तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट व्हिच इंप्लाइज आई एम गोइंग टू गेट दिस nth derivative of fn at z and minus nth derivative of f at z. तो मॉडुलस लगाऊंगा, इंटीग्रल के अंदर चला जाएगा, तो इट हैज टू बी लेस देन और इक्वल टू m फैक्टोरियल अपॉन 2 पाई रहेगा, i का मॉडुलस 1 हो जाएगा. तो इट इज इंटीग्रल ओवर दिस थीटा माइनस z0 इक्वल्स टू s. तो fn जीटा माइनस f जीटा का जो मॉडुलस एस्टिमेट है वो लेस देन एप्सिलॉन n हो जाएगा, इट हैज टू बी एप्सिलॉन n अपॉन, और आपके पास मॉड ऑफ जीटा माइनस z जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू s माइनस r है, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा लेस देन s माइनस r, बट पावर m प्लस 1 ही रहेगी इनटू मॉड ऑफ डी जीटा, ठीक है? तो अब इंटीग्रल के अंदर सारा कुछ कांस्टेंट है, आप बाहर निकालिएगा, पीछे इंटीग्रल आपके पास बचेगा. what you will have, what you are left with is this को मैं इसके बराबर लिख दूंगा m फैक्टोरियल अपॉन 2 pi, it is epsilon n upon s minus r power m plus 1, क्योंकि s और r फिक्स हैं, मैं भी श्योर. और इंटीग्रल आपके पास है zeta माइनस z नॉट इक्वल्स टू s एंड s थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, ये zeta. So now you have this mod of d zeta. तो ये आइए, this is a length of this circle, तो इसका लेंथ होगा 2 pi रेडियस, तो 2 pi रेडियस s है, तो what you have 2 pi और 2 pi कैंसिल होगा, you will have m फैक्टोरियल अपॉन s माइनस r पावर m प्लस 1, तो एप्सिलॉन n
इंटू 2 पाई कैंसिल होगा तो इंटू एस होगा जी, ठीक है। तो अगेन आपको इस नंबर को यू कैन डिनोट दिस नंबर बाय सम नंबर रो के, should not be any trouble with this number. And thus what you have, thus we have this thing, ये था आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इसका ये वाला, and thus we have this mth derivative of fn at z minus mth derivative of f at z, and the modulus is less than, it is strictly less than rho of k, and this is true. Sorry, I just, it has to be rho of n, index में n रखो क्योंकि epsilon n k कार्डिक रख रहा हूँ, it has to be rho of n, and this is true for every mod z minus z naught less than r equal to r, little r, ये इसके लिए true है। And now note that आपके पास रो एंस को अगर आप ध्यान से देखें तो रो एंस आपके पास जैसे n इंफिनिटी को जाएगा तो यू हैव बाय यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस दैट एप्सिलॉन n 0 को अप्रोच करेंगे, तो एप्सिलॉन n 0 को जाएंगे तो रो n भी 0 को जाएगा एज n गोज टू इंफिनिटी। तो अब आपके पास ये क्या हाइपोथेसिस बन गया, ये एग्जैक्टली पूरा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशन बन गई mth डेरिवेटिव्स की, ठीक है। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस आपके पास इस क्लोज डिस्क के ऊपर बन जाती है, आपको कोई पॉजिटिव नंबर्स की सीक्वेंस मिली जो 0 को कन्वर्ज कर रही है और सच दैट आपके पास ये जो मॉडुलस है एफ mth डेरिवेटिव ऑफ एफ एन और एफ के, तो वो आपके पास लेस देन रो एन। So this is exactly nothing but the definition of a uniform convergence. So hence what you can say, hence this sequence of mth derivatives converges to the mth derivative of f uniformly on mod z minus z naught less than or equal to r। और यही हमें प्रूव करना था कि बड़ी डिस्क में यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है तो डेरिवेटिव्स की सीक्वेंस उसके अंदर कोई भी स्मॉलर डिस्क होगा वो वहां पर हमेशा कन्वर्जेंट होगा जी। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? बोलो। नो सर। सो देखिए यहाँ हमने क्या किया, थोड़ा अगर आपके पास हमारे पास ये डिस्क था, व्हाट वी सी कि इसके अंदर सेंटर जेड नॉट और रेडियस स्मॉलर रख के कोई भी डिस्क होगा तो उस पर आपके पास डेरिवेटिव्स की सीक्वेंस भी यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी। यहाँ पर आपके पास डेरिवेटिव्स की सीक्वेंस भी यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी, ठीक है। तो लेकिन अगर आपके पास इस तरह से सिचुएशन आ जाए, आपके पास मान लो डिस्क इस तरीके से, ये वाली डिस्क है इतनी, तो क्या इस डिस्क पे भी डेरिवेटिव्स की सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी? बोलो जरा, बता सकते हो मुझे? नहीं करेगी रचित? करेगी सर। क्यों? सर वो भी उसी की तरह डिस्क है अंदर उसके एक। हाँ, क्योंकि मैं इसको एक एक डिस्क में एनक्लोज कर सकता हूँ, इस डिस्क के अंदर एनक्लोज कर सकता हूँ मैं इसको, जिसका सेंटर जेड नॉट है ना। अब इसका रेडियस यस कुछ मान सर। लो टी होगा, तो इस डिस्क, अब इस बड़ी वाली डिस्क पिंक डिस्क के अंदर ये सारी कन्वर्जेंस होगी, तो वो उसका सबसेट है, तो उसके अंदर तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगी ही होगी डेरिवेटिव्स की, ठीक है जी। यस सर। तो यस सर। इसके बेस पे हमने एक डेफिनेशन डिफाइन कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास इस तरह की सिचुएशन अराइज हो रही है कि आपके पास एक सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस डोमेन डी है, तो आपके ऊपर एक सीक्वेंस है फंक्शंस की, तो वो सीक्वेंस उस डोमेन के ऊपर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है किसी फंक्शन एफ, लेकिन उसके डेरिवेटिव्स की जो सीक्वेंस है वो पूरे डोमेन के ऊपर नहीं कन्वर्ज कर रही है, वो उस डोमेन के अंदर कोई भी स्मॉलर डोमेन्स जो हैं या स्मॉलर बाउंडेड सेट्स या स्मॉलर डिस्क्स जो हैं, छोटी छोटी डिस्क्स जो लेंगे जो उसी डोमेन के अंदर हैं, क्लोज डिस्क, उन डिस्क्स के ऊपर आपके पास वो सीरीज कन्वर्ज कर रही है यूनिफॉर्म, पूरे डोमेन के ऊपर हम कुछ नहीं कह सकते। तो इस तरह की कन्वर्जेंस को हम एक नया नाम देंगे, उसको हम नॉर्मल कन्वर्जेंस बोलेंगे,
ठीक है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि let fn be a sequence of analytic functions. I will define it only for analytic. ठीक है, analytic functions on a domain T such that the sequence Fn converges uniformly to F on each let me call it, I should call it compact set or on each, better would be on each closed disk inside domain T. Then we say that the sequence Fn converges normally to F on domain T. So ये न्यू टाइप ऑफ, ये कोई नई टाइप है, बट इसके बिहेवियर के हिसाब से हम इसको एक नया नाम दे रहे हैं कि दिस इज नॉट फुल कन्वर्जेंस, क्योंकि ये नहीं कह रहा कि पूरे डोमेन पे ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है यूनिफॉर्मली, बस इस डोमेन के अंदर कोई भी क्लोज डिस्क है, हर एक क्लोज डिस्क पे यूनिफॉर्मली कन्वर्ज है। ओवरऑल पूरे डोमेन पे पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस तो होगी, बट स्मॉलर डोमेन्स के ऊपर आपके पास ये हमेशा smaller disk के ऊपर it will be uniform convergence, and this type of convergence is called normal convergence. इसका एक और नाम भी होता है local uniform convergence में हम बोलते हैं, but you just content with this normal convergence. ये बड़ा important type है. In third semester in complex analysis you will have a full chapter based on this normal convergence. इसको थोड़ा सा समझना सोचना इसको बड़ा जरूरी है, ठीक है। तो इसके बहुत सारी इसकी आप गैम्बलिन की बुक पे इसकी एक्सरसाइजेस देखिएगा, यू जस्ट रीड आउट दोस एक्सरसाइजेस एंड ट्राई टू वर्क ऑन दोस सो दैट यू हैव दिस, इसका ये आइडिया आपके दिमाग में चला जाए, ठीक है। एक्सरसाइजेस करने से ये बेनिफिट है कि ये आपका आइडिया आपके दिमाग में सेटल हो जाता है, उसको समझना आसान हो जाता है। So I will stop here today, and if you have any questions I can. Do you have any? सर आपने कल वाले नोट्स थोड़ी शेयर किए हैं। जो कल वाले शेयर कर देगा। ठीक है जी, फिर अगर नहीं